आज का हमारा इंटरव्यू एक ऐसे इंसान के साथ है जो लॉजिस्टिक्स और स्पेशली फार्मा लॉजिस्टिक्स में इंडिया में ही इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ इट। एक अकेला इंसान, एक अकेली कंपनी अगर लार्जेस्ट फार्मा लॉजिस्टिक्स हैंडल करती है इन द कंट्री ऑफ इंडिया, इज दिस मैन। ये सेकंड जनरेशन है, इनकी थर्ड जनरेशन आ गई है। इनकी लर्निंग से हमें ये सब समझ में आने वाला है कि कौन सी क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारे साथ जो लोग टिके हुए हैं वो आज नहीं आजीवन टिके रहे। वो हमें एक लोकेशन नहीं 10 लोकेशन पे काम दे, कैसे जिसको हम हेल्प कर रहे हैं वो हमें हेल्प वापस करे और मजबूर हो जाए। इस इंसान का नाम सचिन पुशेट्टीवार है, ये नागपुर से हैं और इनके इंटेंशंस फॉर डूइंग बिजनेस अक्रॉस 3 generations are very pure. Let's listen to सचिन पुशेट्टीवार। तो सचिन भैया, आपको बहुत लोग नागपुर में जानते हैं एज द फार्मा मैन और द लॉजिस्टिक मैन। हमें ये समझना है कि आपकी जर्नी कैसी रही अब तक की, कैसे शुरुआत हुई और आज तक। थोड़ा इसके बारे में हमें ब्रीफ दीजिए। Bhavesh, actually, I'm into मेरे जॉइंट फैमिली बिजनेस में हूँ मैं। तो दिस फार्मा बिजनेस वाज स्टार्टेड बाय माय फादर। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि प्लीज। while he is a lawyer that time, he started his law practice, and then he realized कि in my native place there was no medical shop. ओके। So attached to his my grandfather's kirana store, he opened one medical shop. और उसमें ना कभी कोई ऑफिसर आ गया एक बार। ही यूज्ड टू स्टे इन चंद्रपुर एंड माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू रन द किराना एंड मेडिकल शॉप बोथ। तो एक बार कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आ गई वहाँ पे, एंड माय ग्रैंडफादर वाज इरिटेटेड। ही सेड कि नहीं, बिकॉज फार्मा इज अ रेगुलेटेड बिजनेस, सो देयर आर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस टू बी मेट विद। तो माय ग्रैंडफादर सेड ये मेरे से नहीं होगा। तो देन but he had started it and he wanted to continue, so ओके। he left the roaring law practice and went to native place and started sitting in the medical shop. ओके। Then he expanded it further. We had three. He started wholesale, and then he opened one branch in Chandrapur, one branch in Nagbir, and both of us, me and my elder brother, joined the same family business. Of course, my mother wanted us to get some good education, हम्म। so we both became engineers. वाह। Then my father had a rule ki unless you work outside, you shouldn't join business, ओके। because working under somebody gives you the value of work, value of money, and value of people. That's what he thought, and we have continued the practice in our family in the next generations also. उसके बाद फिर मम्मी की इच्छा थी कि नहीं भाई, बच्चे पढ़ने चाहिए। तो हम दोनों इंजीनियर बने, एंड देन आई डिड मास्टर्स आल्सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और बाद में फिर मैं बिजनेस ज्वाइन किया। और उसके बाद देन वी रियलाइज कि देर इज अ लिमिटेशन टू द चंद्रपुर सेटअप। ओके। तो उसके लिए उसको लेके फिर हमने सोचा कि और क्या एक्सपेंशन इसमें हो सकता है, एंड देन वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटीज ऑफ वेयर हाउसिंग एंड सी एंड एफिशिएंसीज फॉर फार्मा कंपनीज। तो उसको लेके फिर मैं नागपुर शिफ्ट हुआ, and that is how it started. When I shifted to How Nagpur, old is this? When did you shift to Nagpur? I shifted in 1996. 1996. Okay. It was one company, 1600 square feet warehouse, and God has been kind. We continued to get some good opportunities. और उसको लेके फिर नागपुर we expanded. Then we got opportunity in Indore, then Mumbai, then Pune, and now recently we started Hyderabad. That is how it started. Great. And is how is the business going to go ahead? What are your experiences? Has the next generation started coming in? Yeah, next generation has joined. My son and my nephew both have joined this business. Great. My elder brother, I missed that link. Elder brother still continues to stay in Chandrapur. We are into different business there. Though we are a joint family, we have we are builders there. We construct flat schemes, and Okay. also we run 3 hotels, around 110 rooms we have in Chandrapur, and those are all budget hotels. I mean, हम फार्मा वाले तो हमारे दिमाग में वो फार्मा का बंदा कहाँ रहेगा, वही हिसाब से हमने वो बनाए हैं. So it's like giving back Yeah, also to yeah, the it pharma is kind industry. of giving back. Yes. Great, great. आपने बोला कि your dad gave up the roaring Yeah, practice yeah.
and came back to this business, came to this Yes, business of yes. what would be the reason, or do you know the reason? If you know, let's know that. He wanted to, serve the people. I mean, the people of my native place. जहाँ फिर वो दुकान बंद होती तो दवाइयाँ कहाँ मिलती? That's Wow. what his thought was. Then he continued his social work journey. Interestingly, retired from business at the age of 60 Okay. and continued to work for some social organizations, some political parties, and some political party, not parties. Yeah. So that's how it went on. He's 88 now and is still active. That's a good amount of social work. Great, great, great. You should be always healthy. Yeah. And बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं there is a bigger cause that he wanted to serve, Yes. hence he came Absolutely. back. And Absolutely. thank you Yes. so much for sharing that. This when you came to Nagpur, how Yeah. often do you go to your native place? And when you go, what do you do? What do you enjoy? Visiting native place, I try to go at least once in a month Okay. because my parents still stay there only. Either they come here or I go, but I try to go. Till 2014, it was real fun going to my native place, Talodi in Chandrapur district. But after 2014, we got one opportunity of LPG dealership in Talodi. Okay. So now, whenever I go, I have to go and work there also. So earlier, it was like कि भैया जा रहे तो बिल्कुल घर के अंदर जाओ तो बाहर भी ना निकलो, मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग वाज. बट अभी ऐसा है कि आपको एजेंसी में जाना ही पड़ता है ना, तो काम देखना ही पड़ता है. So there, okay. तो एक और काम हमने वहाँ बढ़ा दिया Yes, तो yes, yes. And it's like then work we there. also run KG to PG institutions in my native place. वो भी एक काम है, तो वो that my father used to manage. Nowadays we both brothers are getting involved. और वो भी एक काम को भी देखना पड़ता है. नेटिव प्लेस जाए तो चिल नहीं मार सकते, यू हैव टू वर्क. If you were to enjoy something at your native place, what's that option? एंजॉय तो मैं घर में रहूँ बस. घर में रहूँ घर में बस. रहूँ बस, मम्मी के और साथ घर में रहूँ. क्या करेंगे हम? मम्मी के साथ रहूँ, गप्पे करूँ, पुरानी बातें, पुरानी यादें, सारी चीजें, बस और कुछ नहीं. एक चीज बताइए जो आपने शेयर की रिसेंट पास्ट में मॉम के साथ, और उसका रिएक्शन क्या था? मॉम के साथ. इंटरेस्टिंग है, मॉम के साथ गप्पे लड़ाना. हाँ हाँ. मुझे भी बड़ा पसंद है. नहीं, बेसिकली ना इट इज ऑल अबाउट हर पेरेंट्स. ओके. या इट इज ऑलवेज अबाउट हर फैमिली. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़माने में गर्ल्स नेवर वंस दे गेट मैरिड, उनका मायका कहीं ना कहीं ये हो जाता है, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था जितना आजकल मिलता है. आज मिलता है. हाँ. तो उसकी बातों में शी लॉस्ट हर फादर सम 20 years बैक, बट स्टिल व्हेन माय मदर टॉक्स टू मी, एक आधे घंटे में शी विल हैव अ रेफरेंस ऑफ अ फादर. ओके. या, तो दैट इज समथिंग आई ऑलवेज नोट. और मैं बोलता हूँ भी, अरे आला आला ना ना वाला, बावन से ना वाला. कब तक लास्ट आपने मॉम को थोड़ी मस्ती की, परेशान किया? हमेशा करता हूँ मैं, अभी भी फोन पे करता हूँ. कैसे आई करते टॉक टू हर एवरी डे. मैं प्रैंक्स करता हूँ, कुछ भी करता हूँ. उनके साथ मजा आता है. Great. So many years of relation. And टुडे still, मॉर्निंग ओनली शी सेड कि व्हेन यू आर गोइंग टू कम, मेरे लिए गंगा जल लेके आना, इतना लाना उतना लाना. बोला देख, लेके आऊंगा लेकिन व्हाइट कलर की जार में मिलता है, ब्लैक कलर की जार में. डोंट पुट दोस कंडीशंस ऑन मी. अब वहाँ क्या है पता नहीं. दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. so that conversation keeps Yeah. happening. ऐसा डैड के साथ conversation No, होता? no. My father was is rather he's been very strict Okay. always, and that is the reason I think we are doing well. So one thing that you love about your dad? He's very disciplined. I mean, even Disciplined. now, if you go, he has a working table at 88. Okay. He reads a lot even at this age. और उनके पास ना लिस्ट बनी होती है कि सचिन के पास क्या काम है उसका एक अलग लिस्ट रहेगा, संदीप के पास क्या काम है उसका अलग लिस्ट रहेगा, Okay. और कहाँ क्या काम है सारे उनके लिस्ट बने हुए थे. आई जस्ट गो एंड रीड देम व्हेनेवर आई गो टू माय नेटिव. वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. तो इज़ वेरी डिसिप्लिन. आई मीन, अभी भी अगर मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ तो उनको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है. So nice. So nice. So his discipline we can actually see in you also, Sachin ji. Not really. Okay. How he contributed to my life, I'll like to share one thing is,
मैं जब 8th स्टैंडर्ड में मैं तलोदी में पढ़ता था, 9th से मैं नागपुर पढ़ने आया, तो 8th स्टैंडर्ड में उन्होंने ना मुझे एक इंग्लिश का ट्यूशन लगा के दिया था, जो ट्यूटर घर में आके मुझे इंग्लिश ग्रामर सिखाते थे। ओके, तो उसका ना मुझे बिकॉज़ आई स्टडीड इन मराठी मीडियम, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ आके जब मैं जो बिज़नेस में आई एम वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स, तो उसमें वो चीज़ का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, लाइक यू नॉट ओनली स्पीकिंग बट कम्युनिकेटिंग विद देम। तो करेक्ट, आपका ग्रामर सही होना चाहिए, मतलब इन द अर्लियर डेज, अभी तो आजकल ऐप्स आ गए कि उसको आप ग्रामर ठीक चेक कर कर लेते लोगे, हो, लेकिन पहले वैसा नहीं था। तो दैट आई थिंक कंट्रीब्यूटेड इन अ ह्यूज वे इन माय टुडेज बिजनेस। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने क्या सोच के किया था मुझे नहीं पता, लेकिन उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन आज मेरे पर्सनल लाइफ में और बिजनेस में है। एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे बहुत किस्से सारे, होंगे, यस यस बहुत सारी यस, चीजें या होगी, या तब नहीं समझ में आता, तब नहीं समझ आज में थोड़ा आता। बर्ड्स आई तब व्यू लगता आया था तो अरे यार ये सब दोस्त खेल रहे हैं और मैं यहाँ मैं बैठ के इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँ। अमेजिंग। मुझे याद है, माय मॉम यूज्ड टू सेंड मी फॉर कराटे क्लासेस सिंस आई वाज इन 6th। संडे सबको सोने मिलता था, मैं 5:30 बजे कराटे क्लास में होता Oh, था। yes. तो Sundays 5:30 is, yes, you know, since then it has been an early morning th- life for me that must be helping you a lot in now, in today, in because you today's life. have early morning workings. Yes. Yes. आपने बीच में बात किया कि he still reads. Yeah. क्या आप में भी वो रीडिंग हैबिट आई? Yes. तो कौन से तरीके की बुक्स पढ़ते हैं आप? मैं ज़्यादातर ना सेल्फ हेल्प पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट उससे आए अपने अपने में, तो सेल्फ हेल्प बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं उसमें। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये एज हो गई है, इसके बाद सेल्फ हेल्प नहीं पढ़ना चाहिए? एक्चुअली भावेश, लर्निंग तो होते रहती है, बट आई केम अक्रॉस अ कॉन्सेप्ट कि माय मेंटर टोल्ड मी कि अब एक एज होनी चाहिए जहाँ बुक्स पढ़नी बंद होनी चाहिए। देयर शुड बी अ टाइम Okay. व्हेन यू शुड स्टॉप रीडिंग बुक्स And एंड एनालाइज फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। so read your own book. Read your own book, yes. That's I have not tried it yet, but I'll do that someday. What do you think is the scariest part in doing that? Oh, you don't get, in a way that would limit yourself to your own experiences, right, of life. But that is one thing. But his own experience is totally different. I mean, Okay. Mr. Raman Nayyar from Ludhiana is my business Mentor. training mentor. So he was telling me, and he has done that. Okay. So he speaks about experiences only, So his own experience. his own तो experience. जब मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी बात Yeah. करता हूँ, आप भी जब अब बात कर रहे हो, तो शायद पैशन अलग होता है, Yes. उसका ओनरशिप अलग होती है, जो मैं बोल रहा हूँ यस, उसकी। तो एक एज होती है जहाँ आपको पढ़ने की जरूरत है। हम्म, एक स्टेज के एक एज या बोलूँ या स्टेज बोलूँ, हम्म, उसके बाद आपको वो जरूरत नहीं रहनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। एंड दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय योरसेल्फ। आई हैव नॉट डिसाइडेड, आई हैव नॉट टेकन दैट डिसीजन येट। या okay. Probably it would be also related to giving back to what you've learned. Is that? यस, एब्सोल्युटली। मैंने इतना सीख लिया। मैंने कहा If it आपका कितना years of professional experience रह चुका है अब? आई स्टार्टेड माय करियर इन 1990 आफ्टर ग्रेजुएटिंग। 1990 to 90, 2024, so 24. 34 years of या 34 years. 34. Am I 34 years. calculating it Yeah, right? yeah. Yes. So Now 34. 35 you may say. No, We are in 35. 2025. We are in 2025. So 35 years of experience now you have. One thing that you would change if you were to do it all over again? I think more planned way I would do, I mean, more structured way I would do everything that I have done. You spoke about accidental entrepreneurship once. I remember Yes. that. Yes. So many things just happened. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। कभी स्ट्रक्चर्ड वे से मैं शायद ज़्यादा करूँगा, ज़्यादा इफेक्टिव काम होगा, ज़्यादा उसके आउटपुट बहुत अच्छा आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। But no regrets about what I have Of done. course. Yes. Of course. Yeah. Of course. So अब स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्या नेक्स्ट करना चाह रहे हो? स्ट्रक्चर तरीके से अभी बिजनेस तो है, उसको एक्सपेंड करना है। हम्म, देन आई हैव अ पैशन ऑफ ट्रेनिंग, तो उसको मैं एक्सप्लोर करने की सोच रहा हूँ कि Okay. आई रिसेंटली completed a 1 year internship of business training of JCI India. Superb. तो उसको लेके अभी आगे बढ़ना है, उसको आगे बढ़ाना है। वॉट एवर आई हैव लर्न इन 34 years ऑफ माई प्रोफेशनल करियर, इट्स टाइम टू गिव बैक। तो वो हिसाब से उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना है, लेकिन दैट वन वर्टिकल वुड बी स्ट्रक्चर्ड। यस, I'm sure with this all experience that you have, it is going to take the U curve, the J curve
very, very fast. Let's see, fingers crossed. Yeah. Excellent. And giving back to the society comes once again in your life. Yeah. So मैं जब से देख रहा हूँ, from your father, from you, you have that knack of giving back. जो भी हम करेंगे, मुझे लगता we'll है give कि back something to हम the लोग होते क्या है, मतलब जितना हम देते हैं उससे कई गुना अपने को मिल वापस जाता मिल ही जाता है, तो देने की कोई हम देते ये बोलना भी शायद वो भी वो भी गलत गड़बड़ होगा, है ना? वो भी शायद थोड़ा Yes. egoistic sound हाँ, it will, yes. So सचिन जी, आपका एक्सपीरियंस फार्मा का कैसा रहा है? थोड़ा अगर डिटेल में इसको बताएंगे तो। As I said, Bhavesh, I shifted back to Nagpur in 1996. Then we had a warehouse of 1600 square feet, and we were working for one single company called Sigma Laboratories. That was our first company. और उसके बाद ना एक चीज़ मुझे समझ में आई कि इट इज़ सर्विस इंडस्ट्री और सर्विस सर्वाइवल है यहाँ ये इंडस्ट्री में। Okay. तो मैं सर्वाइवल के लिए काम कर रहा था कि भाई अपने पास का काम बचना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए और कोई अपने पे उंगली ना उठाए। बेसिकली दैट वाज द क्रक्स कि भाई किसी ने अपने को किसी, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वुड कॉल यू अप एंड से कि यार वो ऑर्डर नहीं आया, ये नहीं आया, मेरा इंसेंटिव का लॉस हो गया, ये वो, इट बिगैन ऑल इन दैट वे। तो बाद में ना 96 वी स्टार्टेड एंड देन कुछ छोटी मोटे एक्सपेंशन होते रहे। Then 99 we got one major break of USV Limited. Okay. Then company started approaching for other locations. Like 98 Sigma Laboratories offered us work in Pune. तो तब रियलाइज हुआ कि देर इज अ नीड ऑफ गुड सर्विस प्रोवाइडर नॉट ओनली इन नागपुर बट आउटसाइड नागपुर Okay. ऑल्सो. So in 98 we started Nagpur, Pune, and then Nagpur Pune हम चला रहे थे. Earlier ये थॉट प्रोसेस था कि भाई वेयर हाउस में इतना बड़ा माल है, कंपनी ने आपके भरोसे रखा है, तो वेयर हाउस की चाबी अपने पास रहनी चाहिए. ठीक है, तो वो चाबी हम मेरे पास रहेगी, मैं जाऊंगा चाबी दूंगा तब वेयर हाउस खुलेगा, तब काम होगा. इस अप्रोच में था. देन आई रियलाइज कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और वो जब रियलाइजेशन आया उसके बाद ही हम एक्सपैंड कर पाए. तो देन आवर मेजर ब्रेक केम इन 2005. Okay. एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आई नेवर न्यू दैट. ऐसा होता है ना कि अपने को कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहता बट यू बिलीव इन दैट. कभी कभी ऐसा होता है. तो एक निकोलस, मेरे कुछ ड्रीम कंपनीज थी कि ये कंपनीज का C&F मेरे पास होना चाहिए. तो वन ऑफ देम वाज निकोलस पिरामल. तो 2004 अक्टूबर में मैं अपने ऑफिस आ रहा था, तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो निकोलस पिरामल का C&F खुल गया. रास्ते में एक बोर्ड दिख गया मुझे कि C&F खुल गया. तो देन आई वाज डिसअपॉइंटेड एक्चुअली दैट डे कि यार ये तो कंपनी मेरे पास होनी चाहिए. आई डिडंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो within 6 months something happened with that old operation, and उन्होंने I received a call one day. एक सिग्मा से कोई पुराना एग्जीक्यूटिव था, उसने कॉल किया कि तुम लोग अभी भी इंटरेस्टेड हो क्या? मैं बोला हाँ इंटरेस्टेड है, बिल्कुल है. He said कि मैं ये कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन आई हैव टोल्ड देम यू आर अ स्मॉल CFA, आपको मैं दे पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैंने रिकमेंड किया है. Okay. तो बट ही इज अ गुड CFA. तो बोले ठीक है. तो देन देर वॉज अ सर्वे नागपुर में. वो लोग आए, उन्होंने काफ़ी सारे सब दे मेड बिग शॉट्स, और उनको कुछ डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट था उस टाइम पे. तो मेरे पास पैसे नहीं थे. आई ऑफर्ड देम 20% ऑफ अमाउंट. दे वर आस्किंग फॉर समथिंग लाइक 95 lakhs. आई सेड कि सर मैं 20 लाख दे सकता हूँ. समथिंग हैपेंड एंड दे गेव दैट वर्क टू मी. आई मीन बहुत इंटरेस्टिंग. मस्ट बी यूनिवर्स मस्ट हैव थॉट कि इसको देना है. तो उस तरह से वो काम मिला. दैट वाज द मेजर ब्रेक. इट सो हैपेंड कि वी स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 7th July 2005. Okay. And then the Mumbai floods happened. That was 26th July 2005, right? If you remember. Yes. Yes. And Nicholas Piramal का जो मुंबई वेयर हाउस था वो पूरा पानी में चला गया. And one day around 20th July I saw Mrs. Swati Piramal, who is the promoter of Nicholas Piramal. She was telling this on CNBC. She was telling we are getting stocks from Nagpur. So imagine for a CFA who had started business on 7th of July, 20th July I was catering to the entire Maharashtra, including Mumbai, Kolhapur, from Nagpur to Kolhapur, Nagpur to Mumbai.
माई प्रोजेक्ट मतलब जो मेरा प्रोजेक्टेड सेल था नागपुर का, उसका हमने वो पहले महीने में 10 टाइम सेल कर दिया, एंड वी कुड मैनेज दैट, एंड दैट गेव अ रियल गुड नेम इन द इंडस्ट्री कि भाई इन्होंने यहाँ से किया. देन कंपनी स्टार्टेड कमिंग इन, नागपुर में एक्सपेंशन हुआ. देन 2011 अगेन Nicholas Piramal was sold to Abbott and they were looking for a central warehouse in Indore. So that opportunity came to us, and then Indore started. 2012, one vertical of Abbott wanted a CFA in Mumbai. तो वो एक वहाँ पे काम मिला. और तब ना एक वो बॉम्बे का काम बहुत छोटा था. आई हैड टेकन अ पार्टनर हु वाज यूज्ड टू सिट देयर फुल टाइम. तो वहाँ पे ये हुआ कि मैं, अब दैट सेटअप वाज स्मॉल, पार्टनरशिप फर्म से आप खर्चा कितना करोगे. तो आई फॉर 6 months आई यूज टू टेक दुरंतो ऑन एवरी फ्राइडे इवनिंग, गो टू CST, वहाँ से लोकल लेके थाना जाता था. थाना से हमारा एक जगह थी जहाँ फ्रेश होते थे, मतलब Okay. वो मेरा पार्टनर जहाँ रहता था, हमारा एक गेस्ट हाउस टाइप था. वहाँ से फिर ऑफिस हम शेयर्ड ऑटो में जाते थे, और फिर मैं शेयर्ड ऑटो लेके फिर थाना स्टेशन आके रात को दुरंतो पकड़ के मैं नागपुर आता था. आई डिड दैट फॉर 6 months. और ये बहुत पुरानी नहीं है बात, ये 2012 की बात है. 2012 की बात. मतलब पर्सनली आई कुड हैव अफोर्डेड टू गो बाय फ्लाइट, बट तब ये पार्टनर का भी ख्याल था कि यार उसको ऑफेंडिंग ना लगे कि यार इस तरह से ये, और खर्चा फर्म से करना नहीं था. तो दुरंतो से मैं 6 महीना गया. अब जब मैं लुकिंग बैक आई थिंक तब लगता है कि यार, बट नाउ वी हैव अ सेटअप अराउंड 2.5 लाख स्क्वायर फुट्स इन मुंबई, एंड दैट इज, आई थिंक दैट That's big. वर्क वो जो हुआ था वहाँ पे. Indore, we have good presence now. We work for 3 companies now and a setup of around 2.5 lakh square feet. Nagpur, we have now expanded to 1.6 lakh square feet. Okay. Or Pune, we have around 1 lakh square feet. From 1600 square feet to this position we have reached. One good part of our business is it is, people, we require a lot of people. So the best part is we are offering, good quality jobs to around 650 people, and that is more satisfying. Amazing. अपना तो घर चलता है, उसके साथ साथ उनका भी चलता है, and that is something very good about our business. So we are able to Yeah. accommodate 650. Creating employment, yes, that is important. That's important. आपने लोकेशन पे लोकेशन ऐड हुआ, ये आपने बताया. What do you think is the key factor companies kept on giving it to you? क्योंकि हर शहर में उनके वहाँ तो लोग होंगे, Yeah. बट आपको अपॉर्चुनिटी देके इंदौर बुलाना, आपको अपॉर्चुनिटी देके बॉम्बे बुलाना. बेसिकली आई थिंक द इंटेंट, एंड आई मीन द इंटेंट शुड बी गुड. आपका सर्विस देने का इंटेंट होना चाहिए कि भाई कंपनीज के लिए हेडेक नहीं चाहिए. एक ऑपरेटर को काम दे दिया उन्होंने, इट इज वंस द वर्क इज आउटसोर्स्ड, तो उनके लिए कोई, यू शुड ensure that they are not troubled in any way. That is one thing. And second factor is, I think, is integrity. They look at it in a big way कि उनके साथ कोई cheating ना हो, मतलब any company that would be, yes. So that two things are, I think, the biggest messages that today's generation should take. Integrity and Integrity, and of course intent. hard work is required. hard work का कोई substitute है सर? कोई नहीं, yes. फार्मा सुनते हुए recent times का ना एक किस्सा बड़ा ध्यान में आता है, कोविड. Yeah. How was COVID for you? COVID was, I would say the very difficult part, because COVID first wave, the police did not understand कि pharma warehouses खुले रहने चाहिए. हाँ. उनको समझ में नहीं आता था, तो दे वुड स्टॉप यू. वो तो हमारे टीम को मारते भी थे, बहुत कुछ तकलीफ हुई. इन देन स्लोली रियलाइज कि नहीं. तो उसमें मैं जब ऑफिस जाता था, दी एंटायर वर्ल्ड वाज एट होम, तो पहले तो बड़ा बुरा लगता था. देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ये तो अपना काम है और ये ईश्वर ने एक संधि चांस दिया अपने को. तो फिर पुलिस के जो नाके होते थे, मैं वहाँ उनको सैनिटाइजर देता था. सैनिटाइजर की बड़ी डिमांड थी तब. नहीं तो फिर रोक के फिर पेपर्स दिखाओ, ये दिखाओ, परमिशन दिखाओ, ये सब होता था. तो मैं उनके लिए सैनिटाइजर के पैक्स रखता था गाड़ी में. उनको एक एक जाते आते, तो दे यूज्ड टू स्टॉप मी फॉर सैनिटाइजर ओनली. तो इंडिया में हर चीज़ में आपको ये करना ही पड़ता है, जुगाड़ ढूंढने पड़ते हैं. जुगाड़ ढूंढना पड़ता है. तो ऐसा था. तो कोविड में सेकेंड वेव वाज हॉरिबल. मतलब 2-3 किस्से मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा. प्लीज. तो वी हैव अ टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस इन इंदौर.
वहाँ पे बिलो 25 डिग्री का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो खराब हो गया. अब आई एम सिटिंग एट नागपुर, माई टीम वॉज देयर. तो और जो ब्लू स्टार को हमने कंप्लेंट लॉन्च किया तो उनके जो टेक्नीशियंस थे दे वर ऑल इन दी कंटेनमेंट जोन. और कंटेनमेंट जोन में ऐसा था, पहले तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता था. बट माई टीम ensured टू पिक द टेक्नीशियन एवरी डे, टेक हिम टू आवर वेयर हाउस, और उनको वहाँ से जो भी रिपेयर का वर्क वो करते थे, और शाम को टाइम लिमिट्स रहती थी, तो उस टाइम लिमिट के अंदर उनको घर छोड़ देते थे. ऐसा उन्होंने 6 दिन किया. आई रियली सैल्यूट दोज पीपल कि उन्होंने उस टाइम पे मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी रहने के लिए इतने एफर्ट्स लगाए. नागपुर में चैलेंज ये हो रहा था कि पर्टिकुलर कुछ इंजेक्टेबल्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती थी. रेमडेसिविर के अलावा भी, मतलब रेमडेसिविर का तो नाम हो गया, लेकिन बाकी जो एंटीबायोटिक्स वगैरह इंजेक्शन रहते हैं ना, उसका शॉर्ट सप्लाई होता था. और हम लोगों को स्टॉक मिलता था, रात को बाय एयर आता था, तो शाम को 7 साढ़े 7 बजे आता था, और उसको पूरा पैकिंग करके हम ट्रांसपोर्टर को रिक्वेस्ट करके रोक के रखते थे. रात को 11 बजे तक हम बेचते थे वो सारा स्टॉक. और कहाँ जाता था वो? ये सारा विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश में जाता था. ओके. एंड वी यूज्ड टू गेट कॉल्स फ्रॉम स्टॉकिस्ट, ये पहुंचा गया, ये पहुंचा गया, पहुंचा गया. और उसको हम बड़े एक लिम्सी करके आपने सब प्रोडक्ट हाँ, सुना बिल्कुल. होगा. तो विटामिन सी था वो? विटामिन सी, यस इट वाज. एंड एवरी टैबलेट ऑफ विटामिन सी, लिम्सी, that was consumed in India was distributed through our Indore warehouse because we are handling Abbott Central warehouse there. तो 100% लिम्सी 100% लिम्सी हमने बेचा है. हमने भेजा है, रादर नॉट हमने भेजा है. वंडरफुल. उसके लिए बड़ी डिमांड आती थी, मीडिया से प्रेशर आता था कि आप स्टॉक होल्ड कर रहे हो. रेमडेसिविर के लिए एक बार हाई कोर्ट में बड़ी झाप सुननी पड़ी कि आप अवेलेबल नहीं करा रहे हो. तो मल्टीपल थिंग्स हैपेंड इन कोविड. और एक दिन हमने एक सेल्फ इनिशिएटिव लेके उसके टेस्ट कराए अपने स्टाफ के, तो 28 लोग पॉजिटिव निकले. अराउंड 15-20% ऑफ योर स्टाफ इज आउट ऑफ द सेटअप, आउट ऑफ वर्किंग. किसी को सिम्टम नहीं थे, लेकिन वो पॉजिटिव हो गए. तो वो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, क्योंकि आई थिंक काम तो 10 गुना बढ़ गया होगा. काम बढ़ गया था. और स्टाफ 10% माइनस हो गया. काम 10 गुना नहीं बढ़ा था भावेश, काम 3 टाइम्स बढ़ा होगा. 3 टाइम्स बढ़ा. क्योंकि देयर वर लाइक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का ही सेल हो रहा था. मतलब नॉट ऑल प्रोडक्ट्स वर सेलिंग. ओके. वायरल फीवर जैसे स्कूल बंद होने के कारण बढ़ा ही नहीं, स्प्रेड नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें उसके लिए जो दवाइयाँ लगती वो नहीं बिक रही थी. नाइस. डू यू रिमेम्बर एनीथिंग, कोई पॉलिटिशियन का फोन आना? यस, रेमडेसिविर के लिए फोन आते थे. एंड वो तो कंट्रोल था, कैसे? मीडिया के फोन आते थे. तो हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज देते थे उनको. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज डूइंग वंडरफुली वेल. द फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट वाज वर्किंग ओवर टाइम. उन लोगों ने काफ़ी अच्छे ये किए थे, तो हम लोग उनको उधर डाइवर्ट कर देते थे. दे वर हैंडलिंग दैट. ग्रेट 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 ग्रेट. सो कोविड उस तरीके से. कोविड वाज, यस, बट इट वाज टफ टाइम. तब तक हमारे कितने लोकेशंस थे? तब तक हमारे 4 लोकेशंस थे. तो आप ट्रैवल तो नहीं कर पाते थे? ट्रैवल नहीं कर पाता था, लेकिन मैं जब रिस्ट्रिक्शंस खुले तो देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग. एंड माय टीम वाज वेरी सपोर्टिव. दे मैनेज्ड इट वेरी नाइसली. आई मीन रियली आई एम प्राउड ऑफ देम कि यहाँ इंदौर में मैं 2 साल तक या 1.5 साल तक मैं इंदौर ऑफिस गया नहीं था. बट दैट टॉट मी कि वो हो सकता है. कि भाई आपके जाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बिल्कुल ही ईमानदारी से जाता था. देयर प्रोसेस सिस्टम डेवलप हो सकती है कि आप नहीं गए तो भी ऑपरेशन चल सकता है. अच्छा. दैट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग कोविड फॉर अस. ग्रेट. सचिन जी, आपकी फैमिली का रोल आप कैसे डिस्क्राइब करोगे इन योर ग्रोथ, इन योर लाइफ? Bhavesh, as I said, actually, my elder brother, I consider him more as a guru. I mean, he is the person, because when I joined business, my father had retired from business. Okay. So it was my brother, he played that role of a mentor in family. Actually, में नागपुर में उसको आना था. He was supposed to be shifting to Nagpur, and it was decided that I'll be handling the wholesale shop in Chandrapur. But one day he said कि नहीं यार, मेरे को नहीं जाना है, तू जाएगा. तो मेरा accidental entry नागपुर में हो गया. I mean, that was good for me, क्योंकि नागपुर I think is a better place, bigger place, and that helped me grow in my career. तो वो एक अभी भी ही बिहेव्स दैट वे ओनली. मेरे से 4 ही साल बड़ा है, लेकिन वो बिहेव ऐसा करता है कि एज इफ
that kind of, he plays that father's role in my life, in business life. Yeah. भाभी के बारे में बोलो. My wife has always been supportive. महीने में 10 दिन में ट्रैवल करता था बिजनेस को लेके. She never complained. I, you know, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि मैं सिर्फ बच्चों के स्कूल में रिजल्ट लेने जाता था, बिकॉज माई वाइफ यूज टू बी इन माई नेटिव प्लेस और हर नेटिव प्लेस. तो मैं रिजल्ट लेने जाता था. एवरी टाइम आई यूज टू आस्क हर बिफोर एंटरिंग द सेंटर पॉइंट स्कूल की कौन से सेक्शन में जाना है, राइट. और एक चीज़ हुई कि व्हेन माय डॉटर वाज नॉट वेल, आई वेंट विजिटिंग द पीडियाट्रिशियन. तो मैंने बोला, अरे सर अच्छा इंटीरियर किया है आपने, बहुत सुंदर लग रहा है. तो he said कि 5 साल बाद आ रहे हो. That kind of support my wife has been to Wow. me in my business. एंड बच्चों ने भी सपोर्ट किया. दे नेवर कंप्लेंट कि पापा आप इतने दिन नहीं रहते हो. तो बोथ प्रणव एंड रिद्धि, दे नेवर कंप्लेंट. दे हैव बीन huge support for the entire thing. I think without the support of family, you cannot do what you want to. अगर वही रहता नहीं कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, तो मैं बिजनेस इतना आसानी से नहीं होता था. Sajin Bhaiya, what is your experience of Corporate Connection and how would you want to describe your journey of Corporate Connection in last 2 years? I think it was the journey for last 2 years has been amazing. I mean, corporate connections, you know, as I always tell people कि I was looking for something like this. As I said कि अगर मुझे pan India काम करना है तो I need to know the influential people in the town. Influential businessmen in the town who have the connects with the right people. क्योंकि बिजनेस करना है तो आपको देर आर मल्टीपल थिंग्स. मैं एक दिन गिन रहा था तो आई एम डीलिंग विद अराउंड 28 एजेंसीज. अगर आप सारी चीज़ें आप गिन लोगे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और सारी जो वेंडर्स है सारे, 28 एजेंसीज. ट्रांसपोर्ट इज जस्ट वन ऑफ देम. तो उसका एक लिस्ट मैंने बनाया था. तो ये सब चीज़ें करते हुए ना, आपको गांव में आपके अगर कनेक्शंस प्रॉपर हो तो उससे बहुत बड़ी हेल्प होती है. और आई रियलाइज दैट इन व्हेन वी स्टार्टेड इन हैदराबाद, तो वहाँ के कॉर्पोरेट कनेक्शन मेंबर ने मेरी बड़ी हेल्प की, जो मुझे नेशनल ग्लोबल कन्वेंशन में मिले थे. उनकी हेल्प की वजह से मेरा काम काफ़ी आसानी से हो गया था. एक पर्टिकुलर चीज़ पे अटकी हुई थी बात, तो दैट हेल्प मी अ बिग वे. सेकेंड थिंग इज व्हेन यू मीट दी राइट माइंडेड पीपल. मैं समझता हूँ कि सीसी नागपुर के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस है कि आई बीन आई गेट इंस्पायर्ड एवरी टाइम आई अटेंड द मीटिंग. ग्रेट. एक होता है ना कि एक एज में ऐसा लगता है कि बहुत कर लिया, अभी क्या है. लेकिन वहाँ आने के बाद लगता है कि नहीं अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कम किया है, अभी उसको आगे बहुत बढ़ाने के स्कोप है, बहुत बड़ा कर सकते हैं. तो वो जो इंस्पिरेशन है वो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट कनेक्शन से मुझे मिला. सुपर. सचिन भैया, फार्मा इंडस्ट्री में या लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में, जो भी आप, या तो हो सकता है दोनों का बता दीजिए या एक का बता दीजिए, क्या अपकमिंग ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं एंड हाउ आर वी getting ourselves prepared for it? About the best part of warehousing, logistics और supply chain जिस business में मैं हूँ, कि इसमें online रहे या offline रहे, there would be a requirement of a warehouse. So we look at huge opportunity in this sector. इसमें ना 3 G's बड़े important है. पहला एक first G is of GST. Second G is geography, जिसमें आप नागपुर का जो एडवांटेज है या हम जहाँ जहाँ प्लेस्ड है वहाँ जियोग्राफिकल एडवांटेज हमको बहुत बड़ा है. ओके. एंड थर्ड जी इज ऑफ गडकरी जी. जिस तरह से हमारे अपने नितिन जी गडकरी काम कर रहे हैं और जितना रोड नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हैं, उसमें एक ट्रेंड ये मैं देखता हूँ कि कंसोलिडेशन ऑफ वेयर हाउसेस विल हैपन. ओके. सो यू वॉन्ट, अभी एक टिपिकली एक कंपनी 30 जगह पे होगी तो शायद कुछ सालों बाद वो 10 या 15 जगह पे होगी या 20 जगह पे होगी. तो दैट कंसोलिडेशन विल हैपन. तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वेदर द लोकेशंस वी आर वर्किंग एट, वो हम लोग बिल्कुल सही जगह प्लेस दे कि नहीं, हमको वो देखना है. ओके. तो हमारे बिजनेस में एज अ लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एज अ होल, मुझे लगता है कि आप कभी समृद्धि पे, मैं उस दिन जा रहा था तो मैं तो पहले तो फर्स्ट टाइम मैं वेंट ऑन समृद्धि, तो मुझे तो डर लगा कि द स्टॉक्स कैन रीच इन 7 hours फ्रॉम भिवंडी, Mumbai. Why would companies keep depots in Nagpur? Or otherwise also? तो then I realized कि it in fact can create another opportunity for us in Nagpur. कि हम यहाँ से भी मुंबई स्टॉक भेज सकते हैं. I mean,
if we provide a cost effective solution, तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट आने वाले दिनों में हमारे इंडस्ट्री के लिए रहेगी कि वेर यू आर प्लेस्ड, और गडकरी जी जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा कंसोलिडेशन होते जाएगा। होते जाएगा। यस, आपने 2005 में नागपुर से बॉम्बे को तो Yes. सर्व किया ही है। यस। कहाँ नया एक्सपेंशन सोच रहे हो? कौन सा नया जी जो ज्योग्राफी? Geography, yes. So we are looking at south. Okay. अभी south is easier to set up Hmm. because the kind of overall ecosystem is there, Hmm. so it is easier to work with compared to north and east. So we want to start with after we are covering entire west now. We are supplying to Gujarat, Maharashtra as a C&F agent. Correct. As hub, of course, we are supplying to the entire country. So we are looking at south. We recently started in the month of June one operation in Hyderabad. हैदराबाद। So probably we are looking at some opportunities in Bangalore. So that would take care of the entire south. And once that business model is set, it is to replicate it pan India. As I said, consolidation will happen. Another competition will come from the organized players. Okay. Reliance is in our business. Adanis are in our business. There are companies like DHL, MNCs who are already working as C&F agents. Entire Southeast Asia pharma warehousing is done by Zulik Pharma. So they opened the setup in India and then closed, but they'll sure come back to India. तो हम लोगों को भी पैन इंडिया प्रेजेंस रखना पड़ेगा, देन ओनली विल बी एबल टू कॉम्पीट, विल बी एबल टू सर्वाइव। And तो उसके लिए अभी से हम तैयार रहेंगे। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी में भी हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमने अभी शुरू किया है। superb. So we've already started. Yeah, we already started. Are we halfway there in terms of presence? We have or we cover No, it's around 35%. 35%. So there's still scope of 65%. Yeah, around 76. It is remains. Great. आपका फेवरेट बुक कौन सा है और उसमें से फेवरेट लर्निंग कौन सी है? Many books, Bhavesh, actually. I recently came across a very old book about procrastination. Eat That Frog. Amazing. Eat That Frog. That Yes, Frog. Yeah, yes, it is yes. I've read that book. amazing. You must I've have read, read it. So I came across very recently. It's an old book, but very interesting. Nice. Many learnings I got. Hmm. But my favorite book is Atomic Habits. थोड़ा थोड़ा करते रहो तो आगे, Yes. Any Every- learning from these books that you want to share? I think whatever I am Hmm. is because of whatever I have read. So are you saying I'm sharing such with everybody? Yes, I mean there are many things, Hmm. many things that have changed my life. अभी प्रोक्रेस्टिनेशन की मैं जो अभी ईट दैट फ्रॉग की बात कर रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आपके 10 प्रायोरिटीज लिख के रहे, नोट डाउन कीजिए, एंड आई डिड दैट, और उसमें वेरी इंटरेस्टिंगली फर्स्ट 5 वर अबाउट हेल्थ। Wow. And for my age, I think that that was right. And are you working on that? Yeah, I do. You're already started working on Yeah, it. absolutely. Great. So what is your experience towards networking, towards I primarily networking को लेके आपका क्या experience है? Bhavesh, I think I owe whatever I have is to networking. Okay. लेकिन पहले के ज़माने में ना उसको नेटवर्किंग शब्द तो अभी अभी आया, मतलब पहले तो हम उसको PR बोलते थे। हाँ. इट वॉज सॉर्ट ऑफ भाई पर्सनल रिलेशन हम मेंटेन करते हैं और उसके बेसिस पे, और हमारा बिजनेस ऐसा तो है नहीं कि जिसके एडवर्टाइजमेंट करके होगा, उसको Correct. कहने की यू नीड अ वर्ड ऑफ माउथ, यू नीड गुड रिलेशंस इन द मार्केट। तो वो वॉट एवर वी आर टुडे इज बिकॉज ऑफ दैट। आई मीन अभी उसको नेटवर्किंग बोलते हैं, तो उसका अभी मुझे लगता है कि PR और नेटवर्किंग में क्या अंतर है, इसके ऊपर हमने भी सोचना चाहिए। हमने भी सोचना चाहिए। अब वो PR बड़ा सर्कल है, उसमें नेटवर्किंग का छोटा सर्कल है, नेटवर्किंग बड़ा सर्कल है, PR। आई थिंक नेटवर्किंग इज स्ट्रक्चर्ड PR, मतलब सोची समझी हुई स्ट्रेटेजी के तहत PR किया जाए तो नेटवर्किंग होगा, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस पे जरूर एक हाथ डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। सो सचिन जी, आपका बिजनेस लाइफ समझ लिया, आपके बारे में क्या पसंद है, आपकी हॉबीज रीडिंग है, ये थोड़ा बहुत समझा उसके बारे में।
आपको ट्रैवल करना कितना पसंद है, कहाँ ट्रैवल करना पसंद है, किसके साथ, और वहां जाके करते क्या हो? मुझे ना एनी काइंड ऑफ ट्रैवल इज पसंद, इसीलिए मैं बिजनेस 4-5 जगह 5 जगह पे करता हूँ, 6 जगह पे करता हूँ। तो वो ट्रैवल इज माय पैशन। मुझे बिजनेस ट्रैवल ग्रेट। तो बहुत पसंद है, लेकिन पर्सनल फैमिली वेकेशन जो होता है ना, हम्म, मुझे वो एक्चुअली दैट रिचार्जेस यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो हम्म। ट्वाइस अ ईयर आई मैं छुट्टी लेना पसंद करता हूँ। और छुट्टियों में अभी आपने पूछा क्या करना पसंद हाँ। करते हो, तो छुट्टियों में ना वो है ना एक सॉन्ग, जाड़ों की नर्म धूप हो, आंगन में लेट कर आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को। आई मीन दैट काइंड ऑफ चिल्ड आउट वेकेशंस आई लाइक। आई मीन बड़े पड़े रहो सोए रहो। एजेंडा वाले वेकेशन एजेंडा दीजिए, वाले चेकलिस्ट वेकेशन, वाले यस, वेकेशन चेकलिस्ट दीजिए। वाले वेकेशन दीजिए, बस जाओ और जो मन में आए करो। दैट इज हाउ द वेकेशन शुड बी, दैट्स व्हाट आई थिंक। And once you with your family, everybody would have some या checklist. So how do फैमिली के we? साथ नहीं, मेरी फॉर्चुनेटली माय किड्स एंड माय वाइफ दे आर आल्सो लाइक मी। आई मीन दे और मॉर्निंग में उठ के Blessed. एजेंडा डिसाइड करें आज क्या करना है, एंड दैट काइंड ऑफ अ वेकेशन इज It's अमेजिंग। amazing. यस, Last, where did you go? I was in Ahmedabad last month Hmm. to attend the Patang Utsav, अच्छा, kite festival. Yeah, काइट फेस्टिवल that गए was हुआ। an amazing experience. हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ। इट इज सेड कि पतंग तो महाराष्ट्र से है, बट आई वाज रीडिंग देयर कि गुजरात का काइट मेकिंग इंडस्ट्री इज ऑफ 600 crore rupees, Wow, right? that's huge. So that's they could monetize the entire event. I mean, Hmm. that's what something I was impressed about what Modi ji did in his tenure, right? So one lesson that you would want to give it to entrepreneurs specifically, or one lesson, या and भी हो सकता है वो, one lesson that you want to give to the upcoming generation. I think the upcoming generation के साथ मुझे ऐसा लगता है कि they have so many distractions. Hmm. उनके डिस्ट्रैक्शंस पे अगर वो कंट्रोल कर ले और फोकस बढ़ाए, तो दे हैव द काइंड ऑफ एनर्जी, द काइंड ऑफ नॉलेज, द काइंड ऑफ रिसोर्सेज, दे अवेलेबल रिसोर्सेज दे हैव, Hmm. आई थिंक दे कैन डू वंडरफुली वेल। तो उनको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कि अगर वो इंस्टा पे बैठ जाए तो 2 घंटे कैसे निकल जाए रील्स पता नहीं देखते हुए चलेगा. पता नहीं चलता। तो दोज डिस्ट्रैक्शंस आई थिंक दे हैव टू कंट्रोल। That's specifically for the young generation or overall? More for the women, More for the women, okay. but overall that is required. I mean, सचिन जी, मुझे जो सबसे अच्छा लगा आज के इंटरव्यू से आपसे बात करके इज वन इज देर इज नो ऑप्शन टू हार्ड वर्क, absolutely, देर इज इंटेग्रिटी दैट वी वर yes, टॉकिंग अबाउट, एंड इंटेंशंस. intentions, yes, ये तीन चीजों के कारण सामने से कोई आके हमें अपॉर्चुनिटीज देके जाएगा, जो हमारे साथ है वो हमारे साथ ज्यादा टिका रहेगा, absolutely, yes. is my learning from this interview that I did. Thank you so much for being here with us Thank you, and sparing Bhavesh. time. Thank you. The pleasure was mine. Thank you so Thank much. you. Thank you.